Hello students, good evening to all of you. So here I am going to start to solve the problems of David G. Griffith, Introduction to Electrodynamics. The first chapter is vector analysis. So let's start with the first example given in the book there. Let C is equal to A minus B. This is basically a vector. C vector is equal to A vector minus B vector. Find the dot product of C with itself. So basically हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है C vector dot C vector और C vector का जो वैल्यू है वो है A माइनस बी. तो हमें इसका इसी के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट करना है. सो इट इज़ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर. सो ये हमारे पास आ जाएगा ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर एंड इट इज़ लाइक प्लस और बेसिकली इट इज़ नेगेटिव देयर. सो यहाँ मैं माइनस पहले ही लिख लेता हूँ. माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड इट इज़ minus minus is basically students like minus b into a is minus b vector dot a vector or it is plus b vector dot b vector. Okay, so it is a dot b, it is b dot a और ये b dot a और a dot a है. So a और a का obviously direction same है. So it is simply written as a square और it is minus 2a dot b because ये जो dot product है it is following the commutative property a dot b और b dot a एक ही बात है. और प्लस यू कैन राइट इट एज बी स्क्वायर. और इसको थोड़ा और सॉल्व करने पे वी विल राइट ए स्क्वायर माइनस 2ab cos theta because a dot b is ab cos theta plus b square. So that is the dot product of C vector with itself and it is also known as the law of cosines. Law of cosines. Let's come to the next question there. Next problem given in the book is show that dot product or cross product are distributive. So अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ लाइक इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ वो है ए डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर एंड इट इज इक्वल टू ए डॉट बी वैक्टर प्लस a vector dot c vector. That is the distributive property. So we have to prove that. There are two questions there. You have to prove generally by simply doing the dot product or geometrically you can also show that this dot product is following the distributive property. So we'll try one of the way there to show that it is like distributive or not. We'll show it by geometrically. So let's suppose this is some a vector students and let's suppose this is some b vector. मान लेते हैं ये b vector है and angle here is theta 1. Let's suppose that is another vector that is c vector. मैं इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ and let's suppose this angle is theta 2. This is b vector और c vector students. Obviously जो यहाँ मैं draw करूँगा using the triangle law that is basically b plus c vector or we can say that the resultant of b and c. Let's suppose that is making an angle of theta 3 with the a vector. So this is the figure there and अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं अगर मैं यहाँ पर b वेक्टर के को यहाँ से बेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये सिंपली आ जाएगा. लाइक आप देखिए b वेक्टर जो एंगल बनाया वो थीटा 1 बनाया. सो दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज b cos थीटा 1 और ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी c cos थीटा 2. मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने लिख लिया b cos थीटा 1 और यहाँ से यहाँ इसको लिखा जा सकता है c cos थीटा 2. ओके और अगर मैं पूरी फिगर को ध्यान से देखता हूँ अगर आप देखिए दिस इज b वेक्टर प्लस c वेक्टर. सो आई कैन राइट दिस बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस b प्लस c. आई कैन राइट दिस एज b वेक्टर प्लस c वेक्टर cos theta 3. I hope you are understanding this at this level. So this is b plus c cos theta 3. एंड अगर मैं परपेंडिकुलर्स को देखना चाहूँ तो ये परपेंडिकुलर्स को मैं पूरे इस परपेंडिकुलर को राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर साइन थीटा 3 और अगर मैं इसे b और c की ही अकेले की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c साइन थीटा 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास b साइन थीटा 1. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस डॉट प्रोडक्ट गोइंग टू प्रूव दिस डॉट प्रोडक्ट. देखिए ये पूरा का जो पूरा है इसे आप बोल सकते हो इट इज़ b प्लस सी कॉस थीटा 3 और अगर मैं टुकड़ों टुकड़ों में से लिखता हूँ तो ये बन जाएगा b कॉस थीटा 1 प्लस c कॉस थीटा 2. इस तरह से इसे लिखा जा सकता है. लेट्स सपोज आई मल्टीप्लाई और डॉट प्रोडक्ट दिस थिंग विद a वेक्टर or I simply multiplied with a vector let's suppose. So it is basically a b plus c cos theta 3. So what इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट. इसे मैं लिख सकता हूँ a dot b plus c because we know that a
जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर वेक्टर के नाम भी ए बी हमने लिए हैं, बाकी जनरल जो फॉर्मूला है उसे भी ए बी की टर्म्स में लिख लेते हैं। सो इट इज़ ए बी कॉस थीटा। अगर मैं कुछ और लिख लेता हूँ लाइक पी क्यू लिख लेता हूँ, सो इट इज़ पी डॉट क्यू इज रिटन एज पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। So here this is a b plus c cos theta 3, so it can be written as a dot b plus c, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर मैं राइट साइड में चलता हूँ, सो a b cos थीटा 1 को मैं राइट कर सकता हूँ a डॉट b, और जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a c cos थीटा 2। इसे मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट c वेक्टर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय द डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद हम यहीं पर सॉल्व करेंगे अपना लाइक दिस क्रॉस प्रोडक्ट को भी प्रूव करेंगे कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो क्रॉस प्रोडक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इस तरह से चलती है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो इट इज़ लाइक ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट लाइक फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो वी हैव टू प्रूव यूजिंग दिस डायग्राम। ये क्रॉस में होता है साइन थीटा। सो लाइक अगर आप इस पूरे परपेंडिकुलर को हमने थोड़ी देर पहले से निकाला था तो इसकी वैल्यू थी पूरे के पूरे परपेंडिकुलर की स्टूडेंट्स, इट वाज बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर साइन थीटा 3, इट वाज लाइक दैट। और अगर इसे मैं स्प्लिट कर करके लिखा था, तो अगर मैं परपेंडिकुलर को लिखा था, पहले मैंने बेस लिखा था, मैं परपेंडिकुलर को लिख रहा हूँ, सो इट कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा 2 प्लस, sorry, it was b sin theta 1 और it was theta 1 बेसिकली, ओके। और इट कैन बी रिटन एज c sin theta 2, ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसे और राइट कर लेते हैं, या लेट सपोज मैं इसे बेसिकली लाइक ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ भी कर लेता हूँ, तो ये पूरे के साथ करूँगा तो इसके साथ भी हो जाएगा ऑब्वियसली प्लस में दोनों टर्म्स। अगर आप इसे देखिए ये बन रहा है ए इंटू बी प्लस सी साइन थीटा 3, सो आई कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी प्लस सी। इट इज़ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी प्लस सी, सो इट इज़ लाइक दैट। यहाँ चलिए ये है ए बी साइन थीटा 1, so it can be written as a vector cross b vector plus it is ac sin theta 2, so it can be written as a vector cross c vector। तो यही हमें प्रूव करना था। so geometrically we can use these tricks, these derivations to prove that our cross product and dot product are distributive। so in starting of chapter you have to keep this thing in mind that dot product and क्रॉस प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज़ आगे प्रॉब्लम्स में और आगे जो कैलकुलस है उसमें इस्तेमाल होती रहेंगी। सो आपको इससे जो है, और इसे आपको यहाँ पर इन जनरल भी प्रूव करने को कहा गया है। सो आई विल सॉल्व फॉर द डॉट प्रोडक्ट देयर लाइक, ये हमने प्रूव कर लिया, बट स्टिल एक और जनरल तरीके से अगर आपको प्रूव करना हो दैट इट इज़ फॉलोइंग दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ए डॉट पी प्लस सी को हम लिखा था हमने ए डॉट पी प्लस ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मुझे जनरली जो है डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से प्रूव करना हो, लाइक स्टूडेंट्स दिस इज ए वेक्टर, ऑब्वियसली ए हैव सम कंपोनेंट्स a1 a2 a3 and similarly b has some components b1 b2 b3 and c has c1 c2 c3। so इस तरह से भी मैं इसे जो है वो प्रूव कर सकता हूँ। सो लाइक लेट सपोज मैं इसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ लाइक इट इज़ a1 डॉट b1 प्लस c1, ओके, ऐसे राइट किया सकता है, प्लस a2 डॉट b2 प्लस c2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, और वी कैन राइट एज a3 एज b3 प्लस c3। हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से राइट कर सकते हैं। सो ये जो है हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद बन जाएगा a1 b1, और लाइक यहाँ से मैं देखूँ तो ये बन जाएगा a2 b2 प्लस a3 c3, ओके। और सिमिलरली जो अदर टर्म्स है अपने पास लाइक इट इज़ इट इज़ a3 b3, और ये बन जाएगा a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। वी कैन एक्सप्रेस दीज थिंग्स लाइक दैट। तो इसी को ही अगर हम ध्यान से देखते हैं, इट इज़ a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, इट इज़ बेसिकली a डॉट b, इसे आप बोल सकते हो a डॉट b, एंड दैट a1 c1 a2 c2 a3 c3 सिंपली a vector dot c vector। so you can write this a dot b plus c following the distributive property in this manner। so in this way you can also prove this distributive property, similarly for the cross product as well। so now let's come to the next question given in the book. There is the cross product associative। so we'll take some examples there, and with the help of examples we will
try to prove that, or we have to, otherwise we have to disprove or prove that. We will take some examples there. Let's suppose A is in I direction, B is in J direction and C is in K direction, because डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं. So it is I, it is J, it is K. So अगर हम इस तरीके से करते हैं, like we know that I cross J will definitely give some vector in the K cap direction. But I'm just taking it in terms of direction. I cross J, I'm not looking into the magnitudes because vectors can be same. वो तो कुछ भी हो सकते हैं, magnitude same भी हो सकते हैं, direction अलग हो सकती हैं. So I cross J will give us K. So K vector cross K, same vectors का cross product, like A क्रॉस P करेंगे तो J I क्रॉस J करने K मिलेगा, K का K के साथ करेंगे तो वो अपने पास 0 आ जाएगा. यहाँ चलते हैं, दिस इज आई, और अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो अगेन हमें आई मिलता है, और आई क्रॉस आई जो है वो 0 आ जाता है. तो यहाँ से तो इस पर्टिकुलर केस के लिए तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि मैं कोई दो वेक्टर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ए वेक्टर भी आई में ही है और बी भी आई में है, बिकॉज वेक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं. और लेट सपोज सी जो है वो जे में है, मान लेते हैं फ्रेंड्स सी जो है वो जे में है. तो यहाँ से जब हम लाइक ए और बी को सॉल्व करेंगे, ए और बी पूरा लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो अब ये दोनों मैंने आई और आई लिए हैं तो ऑब्वियसली ये तो 0 बन जाएगा और ये अल्टीमेटली फिर पूरा ही 0 बन जाएगा. लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलता हूँ, ए को मैंने आई में लिया है और बी जो है अपना वो आई है और ये जो सी है वो अपना जे है. तो आई क्रॉस जे तो हमें के देंगे, डायरेक्शन के देंगे, और आई क्रॉस के विल गेट इट एज minus j. So here in this case it is not coming out to be 0, in this case it is coming out to be 0. So like this property is not falling everywhere. So in general we can say that this is not associative, this is not associative. So these were the questions from the first part of this vector analysis, and in the next video we will discuss about the like finding the direction of some diagonals, body diagonals or face diagonals, and some other concepts of vectors. Thank you.